নমস্কার, আপনারা দেখছেন রিপাবলিক বাংলা। আর ফয়জাবাদ থেকে আমি রেনেসা আপনাদের সঙ্গে রয়েছি। এখন আমরা যেখানে রয়েছি এটা রামভবনে এসেছি। আর এই রামভবনের এই যে পাশের গলিটা দেখছেন, এই পাশের গলিতেই থাকতেন ভগবানজি বা গুমনামি বাবা। আসুন আপনাদের সেখানে আমরা নিয়ে যাই। অযোধ্যার রামভবন, সেই রামভবন সামনে, আর এটা পিছনের অংশ। রামভবন অনেকেই বাঙালিরা তারা জানেন, পরিচিত, কারণ এই রামভবনেই থাকতেন গুমনামি বাবা বা ভগবানজি। এই যে জায়গাটা দেখছেন, এই জায়গাটায় তিনি অনেক সময় বসে থাকতেন। এখানে নাকি রোদ পোয়াতেন। এর আশপাশে অনেক লোকজন থাকতো, তারা অনেক সময় তাকে দেখেছেন। কিন্তু কোন ঘরটায় থাকতেন ভগবানজি বা গুমনামি বাবা, আপনাদের ভিতরে নিয়ে যাই। এই সেই ঘর দেখুন, এই ঘর খুব একটা কনস্ট্রাকশন কিন্তু চেঞ্জ হয়নি। এই ঘরে এখনো পর্যন্ত যারা বিশ্বাস করেন যে ভগবানজি নেতাজি, তারা লিখে রেখেছেন সুভাষচন্দ্র বোস রাষ্ট্রীয় বিচার কেন্দ্র। এবং আমরা ভিতরে প্রবেশ করব, আসুন আপনাদের ভিতরে নিয়ে যাই। এই সেই ঘরটা দেখুন, এখানে অ্যাকচুয়ালি একটা এই জায়গাটা সামনের পোর্শনটা যেখানে থাকতেন এই ভগবানজি বা গুমনামি বাবা, কিন্তু এই জায়গাটা তিনি থাকতেন না। আমি যদি আরও একটু ভিতরে ঢুকে আসি, আমি আমার ভিডিও জার্নালিস্টকে বলবো ভিতরের অংশটায় আসতে। এটা এই ঘরের ভিতরে এখানে দেখুন একটা জানলা রয়েছে। এইখানটায় একটা তক্তা ছিল, এখানটায় তক্তা, হ্যাঁ, সেই তক্তাটার মধ্যে থাকতেন ভগবানজি বা গুমনামি বাবা। অনেকে এখানে যে ভাড়াটেরা ছিল, এটা ভাড়ার ঘর ছিল এবং ফয়জাবাদের এই অংশটায় তিনি থাকতেন। এই ফয়জাবাদের এই জায়গাটায়, এই রামভবনের আশপাশেও বেশ কিছু ভাড়াটেরা থাকতো। তারা অনেকে দেখেছিলেন গুমনামি বাবা বা যাকে বলা হয় ভগবানজি, যিনি এখানে থাকতেন, সেই তাদের কথা মতন একটা ছবি আঁকা হয়েছে। দুটো ছবি এখন পাশাপাশি রাখা আছে। একদিকে ভগবানজি, যাকে পরে গুমনামি বাবা বলা হয়, আর একদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। একদল মানুষ যারা এই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এতগুলো বছর ধরে, তার মধ্যে প্রথম সারিতে যার নাম আসে তিনি হলেন শ্রী शक्ति सिंह जी। शक्ति सिंह जी, आपको स्वागत है रिपब्लिक बांग्ला में। एक नेताजी की फ़ोटो है, एक भगवान जी की फ़ोटो है। तो ये भगवान जी की जो बहुत बहुत मिलते जुलते हैं, ये जो भगवान जी की जो चित्र बनी हुई है इधर, ये किसने बनाया और किसने देखा उनको, अगर आपने नहीं देखा? पीछे कुछ और भी टेरेंट रहते थे, तो कभी कभी भगवान जी बाहर, एक गैलरी है वहाँ पर बैठ के धूप सेकते थे अपने व्हील चेयर पर। तो जो कुछ लेडीज रहती थी या बच्चे रहते थे, उन्होंने उनको देखा था। उन्होंने उनका एक बताया था कि इस तरह के हैं, चौड़ा माथा है, दाढ़ी है, कैसे। तो एक उसी समय जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो स्केच बनाते हैं, उनको बुला के मेरे फादर ने एक उनसे स्केच बनवाया। ছোট্ট একটা ঘর। আমি আমার ভিডিও জার্নালিস্ট রজনীকে বলবো যদি ওই পাশ থেকে একটু নেওয়া যায়, তাহলে এই ঘরটা কীরকম সেটা বোঝানো যাবে। এই দেখুন, এই ঘর ছোট্ট, খুব ছোট্ট। এটা কত হতে পারে, 10x10 হতে পারে বা 10x12 হতে পারে, ছোট্ট ঘর। আর তার মধ্যে একটা অংশ রয়েছে যে অংশে তক্তাপোষ থাকতো। আর আরেকটা অংশ দেখুন, এই যে পিছনের দিকে একটা জানলা, এই জানলার পিছনেই একটা জঙ্গলের মতন জায়গা রয়েছে। এই জানলাগুলো কিন্তু তখনও তেমন ছিল, দেখুন এখনও কাঁচ ভেঙে রয়েছে, কারণ এখানকার এই সংগ্রহশালার যারা দেখভাল করেন তারা বলছেন এটাকে খুব একটা পরিবর্তন করেননি। আর একটা অংশ দেখাচ্ছে, এই যে দেওয়ালটা দেখছেন, দেখুন ভাঙা ফুটো দেওয়াল। এই দেওয়ালে গুমনামি বাবা বা ভগবানজি একটা মা কালীর মূর্তি রাখতেন। এবং এখানে যারা ছিলেন দেখভাল করার, যারা এতদিন ধরে দেখভাল করছেন, তারা বলছেন যে এই কালী মূর্তিটি, এই মা কালীর মূর্তি বা যে ছবিটা ছিল, মানে পটচিত্র ছিল, সেই পটচিত্র দেখার পর ললিতা বোস তিনি যখন এখানে এসেছিলেন, তিনি নাকি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এবং তারপর তিনি বহু জিনিসপত্র, এখানে অনেক ট্রাঙ্ক রাখা থাকতো যখন ভগবানজি থাকতেন, যে ট্রাঙ্কগুলো এখন মিউজিয়ামে রাখা রয়েছে ট্রেজারি থেকে। তো এই ট্রাঙ্কগুলো ললিতা বোস দেখেন এবং তারপর তিনি বলেন যে এগুলো এমন কিছু চিঠি তার বেরোয়, তার মায়ের চিঠি বা আরও বেশ কিছু চিঠি, যেগুলো দেখে তিনি নাকি বলেন যে এগুলো আসলে তার কাকা বাবু, মানে
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর, এমনটা এখানকার যারা সংগ্রহশালা দেখভাল করছেন তারা বলছেন। এখানে একটা আলমারি রয়েছে, যে আলমারিটা তখনও ছিল। এই আলমারিতে থরে থরে বই সাজানো থাকতো। কি বই সাজানো থাকতো? চার্লস ডিকেন্সের বই থাকতো, শেক্সপিয়ারের বই, ইন্দো চায়না ওয়ারের বই এবং একাধিক বই এখানে থাকতো। এই বইগুলো কেন, কি কাজে এই একজন সাধু বাবার কাছে এসেছিল, সেই নিয়েই কিন্তু এই যে রহস্য, সেই রহস্য আরও মানে আমরা বলতে পারি যে গভীর হচ্ছে। चीज के करीब नहीं आया है वो इस चीज को नहीं समझ सकता है। आपने कभी देखा है उनको? कभी कोशिश ही नहीं की उनको देखने की। इस घर में आए थे कभी? मैं तो हमेशा आता था, मुझको हर मंगल को आने को दिखे उनके पास। आपको किसी नाम से बुलाते थे वो? जैसे वो बहुत सारे लोगों को एक नाम रखा करते थे, तो आपको किस नाम से बुलाते थे? उनसे मिलने वालों की संख्या बहुत सीमित थी। उन्होंने कभी अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश नहीं की कि हमारे शिष्य मेरे अनुयायी बढ़ते जाए। बहुत ही कम लोग थे उनके पास जो आते थे, और सबको उन्होंने दिन बना रखा था कि तुम इस तारीख को आओ, तुम इस दिन आया करोगे, तुम इस दिन आया करोगे। और उसी तरह से इन्होंने सबका नाम भी कुछ न कुछ तय कर रखा था। जैसे मुझको नारायण कहते थे वो। बातों का कोई एक जिसे कहा जाए कोई क्षेत्र नहीं था कि इसी क्षेत्र विशेष में बातें होनी है। सीमित नहीं, सीमा रेखा नहीं थी। कोई किसी तरह की कोई सीमा रेखा नहीं थी। आलू कैसे मेथी में तड़का लगाया जाता है ये भी बताते थे, और बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद, जहां हिमालय की मतलब ऊपर जाने के बाद पेट्रोल और डीजल का क्या कॉम्बिनेशन गाड़ियों में लगता है ये भी बताया करते थे वो। पनडुब्बी की किस तरह की वर्किंग होती है इसके बारे में बताते थे वो। जहाज कैसे चलता है इसके बारे में चर्चा करते थे। वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या क्या बातें, कहाँ कहाँ किसने किसने क्या क्या गलतियाँ की उसके बारे में चर्चा करते थे। कभी कभी अपने बारे में कुछ कहते थे कि वो कभी युद्ध लड़े, कभी प्लेन में चढ़े, कभी सबमरीन चलाया, कभी साइबेरिया में गए। जैसे नेताजी से जुड़े हुए कुछ घटना, क्या भगवान जी कभी उन सब चीज़ों की जिक्र करते थे जिससे आपको ये ठोस सबूत लगता है कि यही नेताजी है जैसे आप बोल रहे हैं? इसके पीछे कुछ लॉजिक है क्या? देखिए, साइबेरिया के बारे में चर्चा करते थे वो, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में चर्चा मैं करते चर्चा नहीं बोल रही हूँ, खुद से जुड़े होने की कोई उदाहरण वो देते थे? नहीं, कभी भी। देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ टोटल सामान जो पाए गए हमारे इस राम भवन से वो 2760 आर्टिकल्स निकले हैं, 2760 सामान। लेकिन किसी भी सामान में सुभाष का एस आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सोचिए कि किसी सामान में कोई लेटर लिखा हो कि हाँ सुभाष चंद्र बोस ने पत्र लिखा है या किसी ने सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा है, तो ऐसा आप कोई सामान नहीं पाएंगे। लेकिन घुमा फिरा के हर चीजें इशारा करती हैं कि वो कहीं ना कहीं से नेताजी से संबंधित जरूर है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो लोग आते थे उनसे मिलने के लिए वो कौन लोग थे। जो नेताजी की आजाद हिंद फौज थी उसके जो गुप्तचर शाखा के जो उस समय ऑफिसर थे तत्कालीन, डॉक्टर पवित्र मोहन रॉय, डॉक्टर आशुतोष काली, सुनील दास गुप्ता, सुनील गुप्ता, इस तरह के जो प्रोमिनेंट लोग हैं ये लोग उनसे मिलने 7, 8, 10 लोगों की संख्या में आते थे और 3-4 दिन यहाँ रुकते थे। आसपास के एक होटल, एक मोटल हुआ करता था यहाँ बगल में, वहाँ रुकते थे। और लेकिन उनकी भी एंट्री इस कमरे के अंदर नहीं थी, वो भी इसी वरांडे में बैठते थे। यहीं जश्न मनाया जाता था पूरा उनका जन्मदिन का, या जो आपके बंगालियों में जो एक बहुत बड़ा प्रमुख त्यौहार होता है दुर्गा पूजा, उसका पूरा जश्न होता था, गाना बजाना होता था, भोजन बनता था, प्रसाद मिलता था सबको, सब कुछ होता था। बहुत लोगों से उतना घुलते मिलते नहीं थे, ऐसा कुछ था? किसको देखने की बात कर रहे हैं आप? जो आते थे? जो अतिथि आते थे? नहीं, कभी। हाँ, उनको देखा, क्यों नहीं देखा भाई, वो तो आते थे, सामने से आते थे हम लोगों के। आपने भी देखा? हमने भी देखा उनको, वो तो सामने से आते थे। एक आध बार हमको भी वहाँ पे प्रसाद लेने का मौका मिला है उनके साथ में। डीएनए रिपोर्ट के बारे में तो सरकार ने देने से मना कर दिया है और ये कहा है कि गुमनामी, जो हमको जानकारी है कि गुमनामी बाबा की जो ये रिपोर्ट है, डीएनए रिपोर्ट, इसको देने से कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संबंधों के बारे में उन्होंने बात कही है। तो इसका मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं से इस बात को मान रही है कि गुमनामी बाबा का जो भी सामान है या जो भी डीएनए है या जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं से नेताजी से संबंधित है। और हमारी रिट पर ही जितने सामान उनके ट्रेजरी में पड़े सड़ रहे थे, उनको एक म्यूजियम बना के रखने का आदेश दिया है। म्यूजियम अभी खुला नहीं है, क्यों? अभी इस सवाल तो आप सरकार से पूछ सकते हैं। क्या कि जब हाईकोर्ट के आदेश पर म्यूजियम बनाया गया, उसमें सामानों को रखा गया है
और हाई कोर्ट का बिल्कुल आदेश है सीधे सीधे कि उन सामानों को संरक्षित एवं प्रदर्शित किया जाए, तो आखिर उन सामानों को प्रदर्शित क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों उसमें तालाबंद कर रखा है? ये तो सरकार से आप सवाल पूछिए।